Hello children. Now beta we are going to start the explanation of the first chapter, okay? That is representation of geographical features. This is lesson number 1 of our syllabus. So what is basically in this chapter we are going to study? What we are going to study is we are going to study about the map, different types of maps. Then we will be studying about the different features of map, है ना? So these are the points that we are going to cover in this chapter about the map, about the types of map and different features of map. By saying different features, what I mean to say, like scale, grid, how to measure a distance on a map. So these all are the things that we are going to cover in this chapter. Okay, now let's start. First of all, what is map? You all know that earth is spherical in shape. What is the shape of the earth? It is spherical in shape, correct? So if suppose if you want to represent any part of the earth, so it is not easy to represent it because of the curved surface of the earth. So it is required to represent that part on a flat surface. So whenever you represent a part of the earth on a flat surface, this is called as a map. This representation is called as a map. So how we will define map? A map is a representation of any area of the earth on flat surface. This will be the definition of the map. Now, so how many types of maps are there? So there are different kinds of map, okay? So basically the main types of maps are physical map, political map, thematic map and the topographic map. ये main type के map होते हैं, ठीक है? तो let's see what are these maps. Physical map क्या होता है, political क्या होता है, thematic क्या होता है, let's see that. First one is the physical map. Physical map shows natural features. Very important thing, that what physical map shows, it shows only the natural features such as mountains, peaks, then plains, rivers, all these are the natural features. So the map which shows only the natural features, it is called as the physical map, okay? So this includes continent, ocean, island, lakes, rivers, mountain, plains, deserts, and it also shows some natural boundary. So the physical map is a map which shows the natural feature of the earth. It includes continent, ocean, island, lake, river, mountain, peaks and deserts, and it may also show some natural boundaries. So such map is called as the physical map. The second kind of map, that is the political map. So political map shows the boundaries of a countries and states and the location of towns and cities. So what basically the political map shows? The political map shows the countries, the states, the provinces, and different colors are different colors are used to represent. So this is the man-made division of the land, ठीक है ना? हाँ, it is the man-made division which is symbolized by the color. तो पॉलिटिकल मैप बेसिकली इट शोज द बाउंड्रीज, जो ह्यूमंस ने बाउंड्रीज बनाई है कि दिस मच एरिया इज कवर्ड बाय दिल्ली, दिस मच एरिया इज कवर्ड बाय गुजरात. सो दैट मैन मेड बाउंड्रीज आर शोन बाय द पॉलिटिकल मैप, ओके? So this is the example given here. Next type of map, that is called as the thematic map. Thematic map will show the weather condition. Thematic map क्या बताता है बेटा? वो weather condition बताता है, type of soil बताता है, vegetation बताता है, distribution of minerals बताता है, ठीक है? Thematic map will show कि which kind of vegetation is present in which area. It will show which type of soil is present in which area, which kind of vegetation is done in which area, है ना? तो वो बताता है आपका thematic map. So thematic map basically tells about the weather condition, then it tells about the types of soil, it also tells about the vegetation in particular area and distribution of minerals, है ना? कैसे पता चलता है कि इस एरिया में गोल्ड ज़्यादा है, इस एरिया में आयरन मिलेगा, या किस एरिया में कौन सा मिनरल ज़्यादा एबंडेंट है? तो ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप सिंबलाइजेज द distribution of mineral on the land. So this was about the types of map. There is one another type of map, that is topographic map, but उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. टोपोग्राफिक मैप इज इन डिटेल इन आर सिलेबस, सो अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं. सो फर्दर इन दिस चैप्टर ओनली इट इज़ देयर, सो आई विल बी टेकिंग दैट टाइम ओनली. सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप एंड मैप, that is physical map, political map and thematic map. We discussed about 3 kinds of map.
and what is map. Okay, now the next topic of the chapter is the important features of the map. मैप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, तो जैसे वन ऑफ द फीचर इज द स्केल, ऐसे दूसरा फीचर है ग्रिड, देन नॉर्दिंग, ईस्टिंग, ये सारे डिफरेंट फीचर्स हैं मैप के, जो हम मैप कोई भी मैप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट ईच फीचर. द फर्स्ट फीचर आई एम गोइंग टू टेक scale. Let's take scale. Let's see what is understanding a scale. What is scale? Scales are used to find the actual distance between 2 points on a map. स्केल का काम क्या होता है बेटा, कि किसी भी 2 पॉइंट, मैप पे 2 पॉइंट की बीच की एक्चुअल डिस्टेंस को फाइंड करना, यही काम है स्केल का. दे आर ऑल्सो यूज टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया का जो एक्चुअल साइज है वो हम उसका स्केल, मैप पे स्केल देख के कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what does this mean? We can say that a map is drawn to a scale. हम ऐसा बोल सकते हैं कि map is drawn to a scale. तो कोई भी मैप बिना स्केल के नहीं बन सकता है. This means that a particular length on the map, a particular length on a map, it shows a particular distance on the ground. मतलब अगर मैप में कोई भी लेंथ है तो वो एक डिस्टेंस बता रहा है ग्राउंड पे, है ना. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. सपोज देयर आर 2 places, हाँ, which are apart from each other, 100 kilometers apart from each. So those 2 places which are 100 kilometers apart from each other, we cannot show that on a map simply showing 100 kilometers, because we have restriction of paper, we have restriction of size of paper. So what we need to do, how we will represent those places on a map, we will be taking one equivalent value. हम क्या करेंगे, एक equivalent value लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 50 किलोमीटर, है ना. तो अगर 1 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 50 किलोमीटर, सो 2 सेंटीमीटर विल स्टैंड फॉर 100 किलोमीटर. इट विल बी इक्वल टू 100 किलोमीटर. सो बिटवीन ए एंड बी वी विल मीन्स कीप द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, और हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. दिस इज कॉल्ड एज स्केल. तो हमने क्या किया बेटा, कि ग्राउंड डिस्टेंस को मैप के ऊपर एक वैल्यू लेके रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, दिस इज द स्केल. सो दिस रिलेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 50 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, दिस इज द स्केल ऑफ अ मैप. इसको ही हम स्केल बोलते हैं. ठीक. सो डिफरेंट मैप्स हैव डिफरेंट स्केल्स, है ना. स्केल इज नॉट फिक्स्ड. स्केल फिक्स नहीं होती है. अकॉर्डिंग टू द मैप, अकॉर्डिंग टू द मैप मेकर, स्केल कैन बी एनी. तो स्केल अलग अलग मैप में अलग अलग स्केल होती है. स्केल कभी भी फिक्स नहीं होती है. एनीबडी कैन टेक एनी स्केल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्केल कैन बी चूज्ड. स्केल कैसे हम चूज कर सकते हैं, इट कैन बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स. सबसे पहले तो इट कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पेपर. सबसे पहला तो रिस्ट्रिक्शन आता है पेपर का. बेटा आपके पास कितना बड़ा पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही आप मैप बनाओगे, तो आपको उतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी स्केल की. करेक्ट. सेकेंड, द साइज ऑफ एरिया. आप कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हो. सपोज डिस्टेंसेज आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, 100 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है. तो इतना डिस्टेंस तो हम पेपर पे नॉर्मली शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको स्केल, छोटी छोटी स्केल लेनी पड़ेगी. तो स्केल डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ एन एरिया, ऑन द साइज ऑफ द पेपर. एंड थर्ड होता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर मैप. आप कितना चीज़ों को एलाबरेट करके दिखाना चाहते हो मैप पे, किस पर्पस के लिए आप मैप बना रहे हो. तो दैट इज अनदर फैक्टर टू शो, टू टेक अ स्केल. तो स्केल कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, 3 डिफरेंट फैक्टर्स. The first factor is that according to the size of an area, second according to the size of the paper, and according to the purpose of the map. जब मैंने size of the area बोला, मतलब कि size of the area on the land. ठीक है, size of the area on the land, then size of the paper available and the purpose of the map. ठीक है. So this was about how can we take the scale, what are the factors on which we can take the scale. तो मैंने आपको बताया what is scale, स्केल कैसे लेते हैं, और स्केल हम कैसे, किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम स्केल को चूज कर सकते हैं. Now there are 3 different ways of indicating scale. स्केल इंडिकेट करने के 3 different ways होते हैं. Let's see which are those 3 different ways of indicating scale. So the first way of indicating scale is by a statement. सबसे पहला वे क्या है बेटा, by a statement.
So by a statement is the first method. Second is by a graduated straight line, that is known as linear scale or the bar scale or the graphic scale. ठीक है. एंड थर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज RF, जिसको रेशियो लिखा है यहाँ पर. ठीक है. सो दीज आर द 3 ways ऑफ इंडिकेटिंग मैप. फर्स्ट इज द बाय स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज द वर्बल स्केल. ठीक है. सेकेंड इज द ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन या लीनियर स्केल या द बार स्केल या ग्राफिक स्केल, ये सारे इसके नाम हैं. इट कैन बी नोन एज लीनियर स्केल, बाय द बार स्केल और बाय द graphic scale. We can call it by any name. Then third is the representative fraction ratio. Okay, that is called representative fraction. Now let's see what are all these three. ठीक है. Suppose a distance of 1 centimeter on a map represents a distance of 100 kilometer on the ground. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. ठीक है. तो आप कभी भी जो मैप होता है ना, द स्केल ऑफ दिस मैप कैन बी इंडिकेटेड बाय स्टेटमेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. ठीक है. आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, मैप पे शो करना पड़ेगा सिंपली दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर. ठीक है. तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मैप के कॉर्नर में लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर or 1 centimeter is equal to 100 kilometer, whatever you are taking, whatever the scale you are taking, you have to represent that by writing a statement. What will be your statement? That 1 centimeter is equal to particular length, particular kilometer या मीटर, जो भी आपने दिया है. इसको हम बाय अ स्टेटमेंट या वर्बल स्केल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाय अ स्टेटमेंट और बाय अ वर्बल स्केल. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्केल. सेकेंड वे दैट इज द बार स्केल. आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. आपके टेक्स्ट बुक में सेकेंड स्केल बार स्केल दिया है, यहाँ पे थर्ड दिया है, नो प्रॉब्लम. आई एम टेकिंग फर्स्ट बार स्केल. बार स्केल क्या होता है बेटा? इट इज द स्केल यू कैन सी द एट द बॉटम ऑफ द स्केल, सॉरी एट द बॉटम ऑफ द मैप, नॉट द स्केल, मैप. एट द बॉटम ऑफ द मैप एक ग्रेजुएटेड लाइन. ग्रेजुएटेड लाइन क्या होती है आपको पता है? इट इज़ अ मार्क्ड लाइन, मीन्स जिसके ऊपर मार्किंग होती है उसको ग्रेजुएटेड लाइन बोलते हैं, है ना. जैसे बीकर के ऊपर मार्किंग होती है ना, फ्लास्क के ऊपर मार्किंग होती है, तो उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं. करेक्ट. तो ऐसे ग्रेजुएटेड लाइन होती है, मैप के नीचे प्रिंट होती है. यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. ऐसी ग्रेजुएटेड लाइन जो एकदम बॉटम में बार स्केल में दिया ना, 0, 10, 20, देन 40 बीच में होगा, 50 होगा, 60 होगा. करेक्ट. तो ये आपको स्केल्स दिया है. देखो ऊपर जो दिया है ना वो किलोमीटर से और नीचे माइल्स बता रहा है. ठीक है. इसलिए दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है, डोंट गेट कन्फ्यूज. तो ऐसे आप कोई भी इस तरीके से जब आप ग्रेजुएटेड लाइन के थ्रू आप स्केल को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो वो बताता है बार स्केल. उसको क्या बोलते हैं? बार स्केल बोलते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी दैट 30 किलोमीटर्स कवर हो रहा है ऑलमोस्ट 20 माइल्स में. तो ये बता रहा है 20 माइल्स इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्स. ठीक है. तो इस तरीके से जब हम ग्रेजुएटेड लाइन के थ्रू स्केल बताते हैं तो उसको हम लीनियर स्केल, बार स्केल या ग्राफिक स्केल बोलते हैं. करेक्ट. दिस इज द सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्केल. नाउ थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्केल इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको RF बोलते हैं या रेशियो बोलते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज दिस? फ्रैक्शन मीन्स रेशियो. द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन इज रेशियो. ठीक है. तो रेशियो इज व्हाट? रेशियो क्या होता है? जिस किसी भी वैल्यू में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेशियो, दैट इज अ फ्रैक्शन. करेक्ट. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव रेशियो क्या होगा बेटा? A ratio between map distance upon the ground distance. हाँ, मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में जब रेशियो होता है, और वी कैन से मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ रेशियो. ठीक है. तो इस मेथड को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं. और इसको कैसे डिनोट करेंगे? रेशियो के तरीके से डिनोट करेंगे. आप देख सकते हो नॉमिनल स्केल लिखा है 1:, व्हाट इज दैट? 9 लाख. करेक्ट. सो 1:9 लाख. और this is the scale. Means any in your textbook it is given, another is given 1 centimeter upon 100 kilometer. तो 1 centimeter is the map distance. हमने मैप में क्या लिया था? 1 centimeter लिया था. और ग्राउंड में इक्विवेलेंट वैल्यू क्या थी? 100 किलोमीटर. तो 1 centimeter upon 100 kilometer, it is the way of showing scale. This is called as the representative fraction. ठीक है.
So this was all about the how to indicate a scale on a map. So there are three ways of indicating scale on a map. First, by a statement, that is a simple scale, verbal scale. Second, by the bar scale, जिसको हम linear scale या graphical scale भी बोल सकते हैं. And third, by the ratio, that is called representative fraction. So these are the ways of indicating scale. Now the important thing, there are different kinds of map, different क्या, two kinds of map on the basis of scale. Let's see those two kinds of map. Now see here also you can see the verbal scale representative fraction. ऐसे दिखाते हैं representative fraction. Okay, now let's talk about the large scale and small scale map. ठीक है, now consider a map in which 1 centimeter represents 1 kilometer and another map in which 1 centimeter represents 100 kilometer. Just see the difference. एक मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और दूसरा मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. So it is obvious that the first map will show the greater detail, correct ना, जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर वो ज़्यादा डिटेल बताएगा कंपेयर टू द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. तो what happens, the first map is having a large scale than the second one, that is 1 centimeter is equal to 1 kilometer is the large scale, correct. Small scale map, it generally it is found in the atlas and it shows लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ. जो स्मॉल स्केल मैप होता है ना बेटा, वो लार्ज एरिया बताता है. इट शोज मोर ऑफ द वर्ल्ड बट लेस ऑफ द डिटेल. मतलब वर्ल्ड के लार्ज एरियाज को बताएगा वो, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया का डिटेल वो नहीं बताएगा. स्मॉल स्केल मैप में वो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं. लार्ज स्केल मैप शोज लेस एरिया बट मोर डिटेल, है ना. अगर पर्टिकुलरली आपको अहमदाबाद का मैप देखना है तो आप लार्ज स्केल मैप देखोगे तो आपको पर्टिकुलर अहमदाबाद में कौन कौन से एरियाज है, कहाँ पे क्या चीज़ें वो देख सकते हो. लेकिन स्मॉल स्केल मैप में आप सिर्फ एक गुजरात देख सकते हो और यू कैन सी इंडिया देख सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट सी द minute things present in particular area. तो large scale map shows less area but more detail, whereas small scale map will show more world but less detail, है ना. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि small scale map generally it is found in the atlas and it shows the large area of the earth. Large scale map it is used by the टूरिस्ट लोग यूज़ करते हैं लार्ज स्केल मैप का टू सी द ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया. स्मॉलर एरिया को देखने के लिए लार्ज साइज के पेपर पे जो मैप बनाया जाता है उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं. सो डिफरेंस क्या है दोनों में वो पता चला आपको बेटा कि लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में डिफरेंस क्या है. दैट वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. स्केल अलग अलग है. देखो एक मैप में 1 सेंटीमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर ही बता रहा है, इतना डिटेल बता रहा है, और दूसरा मैप 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर को कवर कर रहा है. So it means कि it is showing the less detail. Okay, so naturally they can show many features of the particular place. Large scale map can show the many features of particular place. तो वो किसको ज़रूरत होती है, टूरिस्ट लोगों को ज़रूरत होती है. Large scale maps are useful when you need a detailed picture of any small area. जब आपको किसी स्मॉल एरिया का एक डिटेल पिक्चर होता है ना चाहिए होता है, तब आपको लार्ज स्केल मैप की ज़रूरत होती है. जब आप देखते हो बिल्डिंग्स बनती है, जो प्लान आउट होता है, तो वहाँ पे लार्ज स्केल मैप होता है, पूरी डिटेल स्टडी होती है. व्हाट इज़ प्रेजेंट नियर टू दिस एरिया, हाउ मच किलोमीटर इट इज़ कवरिंग, हाउ मच डिस्टेंस इज़ बिटवीन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑल द डिफरेंट सेंटर्स. तो ये जो डिटेल स्टडी जब करनी होती है तो हमको लार्ज स्केल मैप की ज़रूरत होती है, और जब हमको ओनली एरियाज देखने होते हैं, लोकेशन देखनी होती है, देन स्मॉल स्केल मैप. ओके, now the next important part is the topographic map. As I told you, this is the important part of this chapter. तो topographic map हम देखते हैं. What are the topographic maps? Now what are topographic map? It is a large scale map. Topographic map एक large scale map है, showing both man-made features and natural features. It shows both the man-made feature. This is the importance of topographic map, that it shows both the man-made feature and the natural features. A topographic map is a type of map characterized by the large scale details and quantitatives representation of relief
यूजिंग द कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस बेटा देखो आप यहाँ पे आपको राउंड राउंड लाइंस दिख रही है मैप में, तो इन लाइंस को कंटूर लाइंस बोलते हैं। कंटूर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। इट इज़ द एलिवेशन, लाइंस शोइंग द एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हाइट, तो जो लाइंस हाइट दिखाती हैं मैप में उनको कंटूर लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे है ये पार्ट, ओके। सो टोपोग्राफिक मैप इज शोइंग द रिलीफ, मतलब फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, दैट इज कॉल्ड रिलीफ, है ना। लैंड फॉर्म्स, तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बताता है टोपोग्राफिक मैप कि लैंड इज एट द हाइट और इट इज़ अ फ्लैट सरफेस, इट इज़ अ हिल, इट इज़ अ प्लेट्यू, विच काइंड ऑफ लैंड इट इज़। तो हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कंटूर लाइंस। तो कंटूर स्टडी करनी पड़ती है। लाइंस आप देख सकते हो कहीं पे बहुत पास पास में लाइंस हैं, कहीं पे बहुत दूर दूर लाइंस है, तो वो सारी मीन्स ऐसे ही डिज़ाइन नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटूर्स विच आर शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। अगर बहुत पास में मतलब वो हाई एलिवेटेड एरिया है, बहुत दूर दूर है मतलब फ्लैट लैंड है, तो ये टोपोग्राफी में कंटूर लाइंस यूज होती हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट टोपोग्राफिक मैप, दैट इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप। सबसे पहले लार्ज स्केल मैप है मतलब वो डिटेल बताएगा, राइट। सेकेंड, it is a map which has both the features, man made features and natural feature, दोनों होते हैं। हाँ, मतलब टोपोग्राफिक मैप में आप टेम्पल भी देख सकते हो, रोड भी देख सकते हो, ब्रिजेस भी देख सकते हो, हॉस्पिटल्स भी देख सकते हो, एवरीथिंग मैन मेड फीचर्स एज वेल एज रिलीफ फीचर्स, नेचुरल फीचर्स लाइक प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारे नेचुरल फीचर्स हैं। तो दोनों को कवर करता है टोपोग्राफिक मैप, ओके। Now, in topographic map, different colors are used. So that is the different part actually that we will be taking at the last, because it is given in the last part of the chapter. Okay, next topic is that measuring distances. How to measure distance on a map. So there are different ways of measuring distances. You can use a scale of a map to find the distance between any 2 points of a मैप। अगर आप दो कोई भी पॉइंट को फाइंड करना चाहते हो मैप पे, सिंपली आप स्केल लो और उससे मेजर कर सकते हो। यू कैन यूज द स्केल और यू कैन जस्ट सी कि टू फाइंड द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऑलरेडी हमने ये एग्जांपल ले लिया बेटा कि 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। सो सपोज कोई पॉइंट ए और बी है, उनके बीच में आप स्केल रख के देखो कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर इज 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर विल बी हाउ मेनी किलोमीटर्स। दिस इज द सिंपल वे टू मेजर द डिस्टेंस बाय यूजिंग अ रूलर और अ स्केल। आप कोई भी चीज़ के बीच में स्केल रख के मेजर कर सकते हो। देयर इज अनदर वे इन विच यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज दैट अनदर वे? बाय द स्टिफ ऑफ पेपर। आप एक छोटा सा पेपर लो, उसको रखो, जो भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको देखना है, और उस पेपर को फिर आप रूलर पे रख के देखो कि कितना डिस्टेंस होता है। दैट इज अनदर वे। यू कैन यूज पेपर, यू कैन यूज स्ट्रिंग, कोई थ्रेड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यूजुअली जो थ्रेड होता है ना बेटा, वो कर्व्ड सरफेस को देखने के लिए यूज किया जाता है। सो सपोज मैप में कोई कर्व्ड सरफेस है, तो वो हम कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हम देखते हैं। So you can see this diagram, how to measure the scale, okay, how to measure the distance. तो मैंने आपको बताया ना कि आप रूलर लेके डायरेक्ट कर सकते हो। तो you can see that ruler is taken and between A and B it is kept. It is given in your textbook also, page number 2. Okay, this is the image from your textbook only. So the two places are there, A and B. In between that the ruler or the scale is kept. फिर हम डिस्टेंस मार्क कर लेंगे और उसको हम स्केल के ऊपर रख के मेजर कर लेंगे, हाउ मच डिस्टेंस इट इज़ कवरिंग एंड हाउ मच इक्विवेलेंट वैल्यू इट इज़ देयर ऑन द स्केल। जो स्केल लिए 1 सेंटीमीटर इज शोइंग हाउ मच किलोमीटर, वो देख के वी कैन फाइंड आउट। दिस इज द फर्स्ट वे। सो अनदर वे इज what is the next way? There is another way in which you can find the distance between 2 points on the ground. Take a piece of stiff of paper. आप piece of paper ले लो और उस पीस ऑफ पेपर को मीन्स इसकी एज एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप कटिंग करोगे पेपर का तो उसका एज एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। यू कैन सी इन दिस नेक्स्ट स्लाइड हाउ टू टेक द पीस ऑफ पेपर। सो एक स्ट्रेट एज का पीस ऑफ पेपर लेना है, प्लेस इट ऑन अ मैप विद द स्ट्रेट एज अगेंस्ट द 2 पॉइंट। जो स्ट्रेट एज वाला पार्ट है वो 2 पॉइंट्स के पास में होना चाहिए। मार्क द 2 पॉइंट्स ऑन द पेपर and place the paper against the scale of a map. You can see
पहले हमने रखा, सेकेंड इमेज में मार्क किया और थर्ड इमेज में स्केल पे रखा, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट measured on the map scale gives the actual distance on the ground. If you try this, the point A and B in the figure, though you will see that the map scale will directly show particular किलोमीटर जो भी है, ठीक है। तो आपकी बुक में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है। तो जैसे आप ऐसे कोई भी पीस ऑफ पेपर लो, उसको मैप के ऊपर रखो, ए और बी पॉइंट जिसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है उसको मार्क करो, फिर उस पीस ऑफ पेपर को आप स्केल पे रखो और ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो देखो, ठीक है। फिर वो डिस्टेंस को आप कितना सेंटीमीटर, वो कितने किलोमीटर के इक्विवेलेंट है वो आप कैलकुलेट कर लो। सपोज ए और बी के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, तो आप देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, देन 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 300 किलोमीटर. So this is the simple way of measuring the distance with the help of piece of paper. Okay, this is all okay if the plane surface is there. So if suppose if there is, how will you find the ground distance between 2 points when the line is not straight? अगर वो straight नहीं है, curved surface है, then how you will find? मैप में भी तो कर्व सरफेस होता है, तो हाउ यू विल फाइंड दैट? तो सपोज यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट, किसी कोस्ट वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहाँ की आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सो फॉर दैट ऑल्सो देर इज अ वे दैट वी हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर और ऑफ स्ट्रेट एज, और वी कैन टेक जस्ट द फॉर द कर्व्ड सरफेस वी कैन टेक दिस थ्रेड, वी कैन टेक थ्रेड और स्ट्रिंग, वी कैन टेक स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट बिटवीन ए एंड बी, प्लेस है स्ट्रिंग, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये थ्रेड या स्ट्रिंग लिया हुआ है, ठीक है। कोई भी थ्रेड ले लो आप, स्ट्रिंग ले लो और उसको आप ए और बी के बीच में रख दो। नाउ पुट दैट थ्रेड और स्ट्रिंग ऑन द स्केल, और आप देखो कि कितना सेंटीमीटर्स है, कितना किलोमीटर्स है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपको कट करना पड़ेगा। ए और बी के बीच में रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आप कट कर दो। नाउ प्लेस दैट थ्रेड ऑन द स्केल एंड सी द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देन मेजर विद द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज द थर्ड वे टू मेजर द डिस्टेंस ऑन द मैप। तो 3 वे मैंने आपको सिखाया। व्हाट आर द 3 वेज? फर्स्ट बाय पुटिंग द रूलर और द स्केल, सेकेंड with the help of a piece of paper, and third with the help of string or thread. So these are the different ways of measuring the distance on the map. Next important feature क्या है? Direction. क्या है? Direction. In many maps you will see the direction. आप different directions देखोगे। अब मीन्स आपको वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जो अपर मोस्ट पॉइंट पे होगी, दैट विल लेटर एन लिखा होता है, दैट मीन्स नॉर्थ, ठीक है। एस लिखा होगा, डाउनवर्ड होगा, दैट इज साउथ। ईस्ट, ई से लिखा होगा, वेस्ट डब्ल्यू लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एन एस डब्ल्यू एन ई। तो ये आपको मैप में दिख जाएगा, जब भी आप मैप देखोगे तो आपको दिखेगा एन लिखा है दैट मीन्स नॉर्थ, एस लिखा है तो साउथ, ईस्ट ई, वेस्ट डब्ल्यू, ओके। यू कैन ऑल्सो फाइंड द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। आपको पता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट के बीच में 4 डायरेक्शंस और होती है ना? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, करेक्ट। ये बीच की 4 और डायरेक्शंस होती हैं। तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो? विथ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज द कंपास रोज। उसको क्या बोलते हैं? कंपास रोज। कंपास रोज आपको इंटरमीडिएट डिस्टेंस बताता है किसी भी एरिया का, ठीक है। एंड द लोअर पार्ट हमेशा इन मैप, द अपर पार्ट इज ऑलवेज नॉर्थ, द लोअर पार्ट इज ऑलवेज साउथ। देन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स, द लेफ्ट साइड इज वेस्ट, राइट साइड इज ईस्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है। सो वेन एवर यू आर सीइंग अ मैप, एन इज रिटन, सो अपर पार्ट में एन होगा, लोअर पार्ट में साउथ होगा। लेफ्ट साइड में हमेशा लेफ्ट साइड विल ऑलवेज शो द साउथ एंड राइट साइड विल ऑलवेज शो द, सॉरी, left side will always show the west and right side will always show the east. So these are the ways how to determine the direction. So what we studied today, we studied different features of the map, we studied about the map, types of map, scale, factors on which we then ways to indicate the scale, and
we studied about the direction, how to measure the direction. ठीक है, तो direction can be measured with the help of compass rose. This is the instrument, this is the name of the instrument, compass rose. And how the direction is shown on the map? With the help of letters N, S, W, E. And suppose the intermediate directions are shown, then how they will be shown? By which letter? तो northeast है तो NW, sorry NE, साउथ ईस्ट है तो SE, साउथ वेस्ट है तो SW, एंड नॉर्थ वेस्ट है तो NW. सो दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन सी द डायरेक्शन ऑन द मैप. और मैंने बताया आपको, नॉर्थ विल बी ऑलवेज अपवर्ड, साउथ विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, देन always left side will show west and right side will show the east. Okay, so now with this I am ending the lecture today. Now rest topics I'll be taking in the next class. Okay, so till here you have to revise and learn. So goodbye children, have a nice day all of you.